Morning, ma'am. Good morning. Good morning, everyone. Okay. So yesterday we have discussed the framing and flow control method start हो गया था and we have started with the noiseless channels and उसमें हमने पढ़ा था आपका simplest protocol. ठीक है. So आज हम we'll study a type of protocol that is basically noiseless also, and it has some addition features to it, and then they made it as a noisy channel protocol for a noisy channel. Okay, so if you see this figure, so you can see that there are two types of channels, that is your noiseless and noisy. So for noiseless we have two types of protocol, that is simplest and stop and wait. So simplest we have already covered yesterday. Ki simplest mein there is no what you can say no data flow control, no error control, nothing is there. Okay, now we'll study stop and wait, and we will study stop and wait ARQ, that is for the noisy channel. So then we will try to find out the difference between the two. So we have studied this. Now let's start with the stop and wait protocol. पहले पढ़ा है किसी ने? मतलब पढ़ा तो हो गई, but याद है, आइडिया है? No, ma'am. Nobody? चलो. Sender send the request. हाँ? Yes, ma'am, sender send the request and wait for the acknowledgement from the Sender receiver sends side. the request. Sender does not send the request. Sender sends the packet. जो आपका frame है, sender वो भेज देता है, and then it keeps on waiting till the acknowledgement is received. ठीक है? Correct हो आप? Now, अब stop and wait protocol सिर्फ stop and wait अगर है, so it is for your noiseless channel. So if the अब हमने पढ़ा था, we have studied that data frames जो आपका flow control है, basically why it is used. Flow control is used when your sender is fast and your receiver is slow, right? तभी हमने flow control पढ़ा था कि if sender की send करने की speed जो है is far greater, is far more than the speed of receiver of receiving the packet, so we use this flow control. So if data frames arrive at the receiver side faster than they can be processed, frames must be stored until their use. Obviously, agar sender is sending 10 frames per minute and the receiver is able to receive only 5 frames per minute, so the gap, that is 5 frames that are remaining, they must be stored somewhere. So to prevent the receiver from becoming overloaded with frames, the sender is told to slow down. So how it will be? So they have included the concept of feedback. So there must be feedback from receiver to sender, and this feedback is only known as acknowledgement, that is ACK. Okay, so the protocol is called stop and wait protocol because sender sends one frame, sender ने एक frame आपका send कर दिया, then it will stop for a period of time until it receives confirmation from the receiver and then sends the next frame. So यहाँ पे stop and wait protocol में the sender has to wait for the time जब तक confirmation नहीं आ जाती receiver के end से कि I have received your data, now you can send me the next frame. ठीक है, so ये still is unidirectional, but यहाँ पे क्या concept आ गया बस कि the auxiliary frames, that is your ACK, मतलब आपके वो frames जो that carries the acknowledgement कि okay I have received your data, now you can send me the next packet, बस वो आपके receiver के end से आ सकते हैं. So if you see the flow diagram, so this is the flow diagram. ये sender है आपका, ये receiver है. So यहाँ से sender ने at this point of time sender send the data. अब sender ने data भेज दिया, now he is waiting कि अब receiver मुझे acknowledgement भेजेगा. So now at जैसे receiver को data मिला, it will send the acknowledgement to the sender. Then again sender will send the next data packet, and जैसे receiver को मिलेगा, it will send it back to the acknowledgement to the sender. ठीक है, अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई, यहाँ पे ये चीज हुई कि देयर मे बी अ केस कि आपका जो एक्नॉलेजमेंट है वो लॉस्ट हो जाए या आपका डेटा जो है वो लॉस्ट हो जाए. सो उसको कैसे ध्यान में दोगे? सो फॉर दिस स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल फेल्स बिकॉज स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में
कोई भी ऐसा प्रोसीजर, कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जो आपको ये बता सके कि अगर आपका डेटा लॉस्ट हो जाए या आपका एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो जाए, सो आप कैसे प्रोसीड करोगे आगे। सो ये था आपका नॉइसलेस चैनल। बिकॉज अब देखो व्हाई देयर इज नो प्रोसीजर कि अगर डेटा लॉस्ट हो जाए तो क्या करना है, बिकॉज स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल इज फॉर नॉइसलेस चैनल। एंड नॉइसलेस चैनल में क्या होता है कि ना कोई एरर आएगा, ना कोई करप्शन होगा, ना कोई डेटा बिट डैमेज होगी। सो वो ये मान के चलेगा कि डेटा पैकेट कभी लॉस्ट होगा ही नहीं। बट इन टूडेज वर्ल्ड नॉइसलेस चैनल इज जस्ट नॉट पॉसिबल, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एरर, कोई ना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती ही है। सो दैट इज वाई फिर आए नॉइजी चैनल्स। सो नॉइजी चैनल्स क्या होते हैं, जो चैनल जिनमें आपका एरर हो सकती है, जिसमें आपका डैमेज हो सकती है, बिट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो उसमें आपका जो फर्स्ट प्रोटोकॉल आया वो था स्टॉप एंड वेट ARQ, दैट इज ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल। सो ये डिफरेंस याद रखना कि अगर सिर्फ स्टॉप एंड वेट है सो दे आर टॉकिंग अबाउट नॉइसलेस चैनल्स, अगर स्टॉप एंड वेट ARQ है तो दे आर टॉकिंग अबाउट दी नॉइजी चैनल्स, ठीक है। स्टॉप एंड वेट ARQ बेसिकली, अब यहाँ पे जो the main problem that was faced by stop and wait protocol is the occurrence of deadlock. occurrence of deadlock कैसे कि सपोज ये आपका सेंडर है, दिस इज द सेंडर एंड दिस इज द रिसीवर। अब यहाँ पे सेंडर ने अपना डेटा जो है वो रिसीवर को सेंड कर दिया, ठीक है। नाउ इट हैज सेंड द डेटा, यहाँ से आपका डेटा चला गया। अब नाउ सपोज रिसीवर ने अपने अकॉर्डिंग, रिसीवर हैज सेंड द एक्नॉलेजमेंट, बट दैट एक्नॉलेजमेंट इज लॉस्ट समवेयर। सो अब ये एक्नॉलेजमेंट सेंडर को रिसीव हुआ नहीं, राइट। रिसीवर ने अपने अकॉर्डिंग एक्नॉलेजमेंट भेज दिया है, नाउ रिसीवर इज वेटिंग फॉर द सेकंड डेटा, बट सेंडर इज स्टिल वेटिंग फॉर द एक्नॉलेजमेंट। सो इट इज अ टाइप ऑफ डेडलॉक कि सेंडर ने अपना डेटा तो भेज दिया, रिसीवर को लग रहा है कि आई हैव सेंड द एक्नॉलेजमेंट एंड सेंडर इज नॉट सेंडिंग द डेटा, बट सेंडर को लग रहा है कि मैंने तो डेटा भेज दिया, रिसीवर इज नॉट सेंडिंग द एक्नॉलेजमेंट। सो दिस इज द केस, ये एक टाइप ऑफ डेडलॉक है। सो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, एक तो लॉस्ट ऑफ डेटा पैकेट कि आपका जो, अगर आपने सेंडर और रिसीवर ने यहाँ से डेटा ही लॉस्ट हो गया, डेटा ही नहीं रिसीव हो पाया रिसीवर को, so receiver will keep on waiting for the data and sender will keep on waiting for the acknowledgement. so first हो गया आपका loss of data packet and second हो गया आपका loss of acknowledgement, जो अभी हमने डिस्कस किया था थोड़े पहले, ठीक है। So stop and wait ARQ is an improved and modified version of stop and wait. ये ध्यान रखना, stop and wait ARQ and stop and wait are two different protocols, ठीक है। stop and wait ARQ assumes that the communication channel is noisy. stop and wait ARQ में आपका noisy channel यूज किया जाता है and errors may get introduced in the data during the transmission. stop and wait protocol was for noiseless channels, तो ना ही वो कोई error मान चलेगा कि there is any error in my transmission, neither it will think that my channel is having any problem. so it will think that मैंने data भेज दिया, data receive हो गया, data आ गया वापस, simple, nothing else. बट स्टॉप एंड वेट ARQ knows कि नॉइजी चैनल है, डेटा में प्रॉब्लम आ सकती है, एरर आ सकती है। सो नाउ व्हाट स्टेप्स आर यूज्ड इन ARQ? So this technique, that is your stop and wait ARQ, works on the principle that the sender will not transmit the next frame. Sender ने एक frame send कर दिया, ठीक है। Now it will not transmit the next frame until it receives the acknowledgement of the last transmitted frame. This means कि अगर ये sender है and this is the receiver, so if sender has sent a frame, agar sender has sent a frame, so it will not send the other frame until and unless it will not receive the acknowledgement. It will keep on waiting, ठीक है। अब इसमें आपके 3 extra elements add हो गए हैं apart from this thing. What are the 3 elements? First is the timeout timer. Timeout timer basically क्या करेगा, जैसे ही sender has sent data, suppose sender ने frame बोलो, let's say suppose sender has sent 1 frame, ठीक है। sender sends 1 frame and now it will start the T0, that is your timeout timer. Now what this timeout timer will do, suppose the value of timeout timer is 5 microseconds, कुछ भी, ठीक है। so now it will wait for, this is your 0, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5. It will wait up till this time. This is the time it will wait for. अगर इस time तक, until this time, if your receiver has not sent the acknowledgement, what will it do? It will send, if this is your frame 1, it will send the frame 1 again. बात समझ में आई वाली?
अगर टी नॉट आपका टाइम आउट टाइमर स्टार्ट हुआ टी नॉट पे, जैसे ही सेंडर ने फ्रेम 1 सेंड किया रिसीवर को, नाउ सेंडर विल वेट फॉर द एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर. इन केस receiver is not able to send the acknowledgement for this amount of time, what will happen? Sender will send this frame again. So this means the sender is having a copy of this frame 1. So जो भी डेटा है आपका इस frame 1 में, sender will keep a copy of itself, right? Copy with itself. Why? Because it may happen that the frame is lost in the way. So it may be a case that the sender has to send the frame again. ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ टाइम आउट टाइमर का? यस मैम. सबको यस मैम. ठीक है. फिर नेक्स्ट आया आपका सीक्वेंस नंबर्स. अब सीक्वेंस नंबर्स की क्या क्यों जरूरत पड़ी? सपोज कि आपने सेंडर है, ठीक है, सेंडर एंड दिस इज द रिसीवर. सो नाउ सेंडर हैज सेंट अ फ्रेम टू द रिसीवर. सपोज कोई भी फ्रेम भेज दिया, ठीक है, दिस इज फ्रेम 0. सपोज फ्रेम 0 से हम स्टार्ट करते हैं. नाउ व्हाट विल हैपन इज कि रिसीवर क्या करेगा, जैसे रिसीवर को फ्रेम 0 मिला, रिसीवर विल सेंड द एक्नॉलेजमेंट. ठीक है, रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट भेजा. नाउ व्हाट विल बी द केस, अब सेंडर को एक्नॉलेजमेंट मिल गई. नाउ व्हाट विल हैपन इज कि रिसीवर को ये कैसे, अब सेंडर ने सपोज, अगर मैं फ्रेम 0 नहीं बोल रही, सिर्फ फ्रेम बोलती हूँ उसको, ठीक है, दिस इज फ्रेम जो रिसीवर ने भेजा, सेंडर ने भेजा रिसीवर को, रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट भेज दिया. अब रिसीवर सेंडर ने दोबारा से एक फ्रेम भेजा. सो हाउ विल द रिसीवर नो कि ये और ये फ्रेम अलग है? How will the receiver know that this is a different frame, this is a different frame, I do not have to discard it, it is not a duplicate. So for this frames के लिए sequence numbers introduce किए गए. Similarly for acknowledgement also, suppose sender ने frame 0 भेजा, receiver ने acknowledgement भेज दिया. अब sender को कैसे पता लगेगा कि this acknowledgement is for what? So it will have a sequence number for acknowledgement as well. अब यहाँ पे जो आपको point ध्यान रखना है, that is very confusing, मतलब sometimes. What is it? कि suppose this is the sender and this is the receiver. ठीक है, sender ने suppose भेजा आपका frame 0. From this point frame 0 sent हुआ. Now receiver जो भेजेगा acknowledgement, receiver acknowledgement भेजेगा with the sequence number 1. This means this acknowledgement 1 means कि receiver has received the frame 0. Now I am waiting for frame 1. Acknowledgement 1 का मतलब ये नहीं है कि I have received frame 1. Acknowledgement 1 means कि I have received your previous frame. Now I am waiting for the frame with the number sequence number 1. ये चीज क्लियर हुई? So अगर कभी भी याद रखना कि if there is frame 0, so acknowledgement हमेशा +1 का ही आएगा. क्लियर है ये चीज? यस मैम. ठीक है, क्योंकि ये चीज कंफ्यूजिंग होती है कभी भी, मतलब अभी तो नहीं, बट अगर कोई क्वेश्चन मिलेगा आपको, अगर कोई इस टाइप का क्वेश्चन हुआ जिसमें वो आपको एक्नॉलेजमेंट के बारे में पूछ लेंगे, सो इट विल क्रिएट अ कंफ्यूजन. सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर सेंडर ने फ्रेम 0 भेजा है, सो रिसीवर विल सेंड द एक्नॉलेजमेंट ऑफ 1. That is, now I am waiting for frame 1. I have received the frame 0, acknowledgement भेजा frame 0 का, and 1 means कि I am waiting for frame 1. So this is your extra elements in stop and wait ARQ. First is timeout timer, then sequence numbers for data packets and sequence numbers for acknowledgement. Now, the next is how many sequence numbers are required. अब stop and wait ARQ आपके different protocols आप पढ़ोगे. So now the question is कि sequence numbers चाहिए. अब हमने we have studied कि why we need sequence numbers, but now we need to know that how many sequence numbers are required. So sequence numbers is basically available sequence number is greater than equal to sender window size plus receiver window size. Sender window size is कि how many frames a sender can send at one particular time. ठीक है, and receiver window size is similar कि how many frames a receiver can receive at a particular time. So in case of stop and wait ARQ, अभी स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल को आप छोड़ो, ठीक है, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल जब हम पढ़ेंगे, बिकॉज स्टॉप एंड वेट ARQ बेसिकली जो है वो आपका स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का टाइप है, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल. ठीक है, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जब आपको गो बैक और सिलेक्टिव रिपीट में पढ़ाऊंगी, उससे पहले. ठीक है, सो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि स्टॉप एंड वेट ARQ में
आपका सेंडर विंडो साइज 1 होता है, ठीक है, मतलब कि सेंडर कैन सेंड 1 फ्रेम एट अ टाइम, और रिसीवर विंडो साइज भी 1 होता है, मतलब कि रिसीवर कैन रिसीव 1 फ्रेम एट अ टाइम. सो दिस मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ सीक्वेंस नंबर्स, मिनिमम नंबर कितने हो गए 2. सो 0 और 1 ही आपके सीक्वेंस नंबर्स होते हैं इन केस ऑफ स्टॉप एंड वेट. दैट इज द टू सीक्वेंस नंबर यूज्ड आर 0 and 1. इट इज क्लियर हो गई? इतना क्लियर हुआ? Yes, ma'am. जब हम Ma'am, स्लाइडिंग विंडो, for example, sender send. Ma'am, please move on the previous slide. Yes, ma'am. This. मैम ये जो हमने करा था टाइम आउट टाइमर में बेसिकली सेंडर सेंड अ फर्स्ट फ्रेम 1 टू द रिसीवर बट रिसीवर कांट प्रोड्यूस एन एक्नॉलेजमेंट and again sender send the same frame 1 but and again receiver can't an acknowledgement. तो मैम in this time receiver क्या दो acknowledgement को कर सकता है? नहीं, सी सेंडर ने भेजा फ्रेम 1, क्योंकि ठीक है, सेंडर की साइड यहाँ से से मैम 2 टाइम पे फ्रेम गया है. सी यहाँ से T0 एट पॉइंट T0 जो T0 बेसिकली फ्रेम 1 सेंड हुआ सेंडर के टाइम से, ठीक है, रिसीवर एक्नॉलेजमेंट भेज दिया, रिसीवर ने अपने अकॉर्डिंग एक्नॉलेजमेंट भेज दिया, बट ये लॉस्ट हो गया, ठीक है. यस. फिर उसके बाद एक टाइम आउट, आपका एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए वेट किया सेंडर ने, अब उसने सेंडर ने नहीं रिसीव, मतलब उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, सो वो दोबारा फ्रेम 1 भेज देगा. जब वो दोबारा फ्रेम 1 भेजेगा, व्हेन रिसीवर विल रिसीव द फ्रेम 1 अगेन, सो इट विल कम टू नो दैट ओके माय एक्नॉलेजमेंट इज लॉस्ट. अदरवाइज अगर मेरा एक्नॉलेजमेंट सेंडर को मिल गया होता, सो सेंडर ने दोबारा ये भेजा नहीं होता मुझे. नाउ व्हाट विल हैपन इज रिसीवर विल अगेन सेंड द एक्नॉलेजमेंट. नाउ अगर ये वाला एक्नॉलेजमेंट भी लॉस हो जाता, सो एट आफ्टर द टाइम आउट टाइमर सेंडर विल अगेन सेंड द सेम फ्रेम. अगर मान लो ये भी यहाँ पे लॉस्ट हो गया, सो अगर ये एक्नॉलेजमेंट भी लॉस्ट हो गया, सो फ्रेम 1 की दोबारा से कॉपी रहेगी सेंडर के पास, वो दोबारा भेजेगा. सो अगेन रिसीवर विल कम टू नो दैट ओके माय एक्नॉलेजमेंट इज लॉस्ट. दैट इज व्हाई sender is sending me the frame 1 again and again. So जब तक sender को frame 1 की acknowledgement नहीं मिल जाएगी, it will keep on sending the same frame. ठीक है? ओके मैम. ओके. So this is the sequence number वाला case. Now अब आपके स्टॉप एंड वेट ARQ क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. तो फर्स्ट प्रॉब्लम थी आपकी लॉस्ट डेटा पैकेट. सो लॉस्ट डेटा पैकेट मतलब कि यहाँ पे आपका सेंडर है एंड दिस इज द रिसीवर, ठीक है. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, पैकेट 0, बिकॉज आपके अभी हमने पढ़ा कि 0 and 1 आपके होते हैं सीक्वेंस नंबर. सो पैकेट 0 सेंड हुआ, ठीक है, फिर आपका टाइम आउट टाइमर यहाँ पे स्टार्ट हो गया. अब ये आपका हो गया लॉस्ट. नाउ दिस पैकेट इज लॉस्ट समवेयर इन द मिडल, रिसीवर को मिला नहीं. सो जैसे ही आपका टाइम आउट टाइमर एक्सपायर हुआ and sender will see that okay receiver has not sent me the acknowledgement till yet, so this means that my packet is lost somewhere. So what it will do, अब दो कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है. अब यहाँ पे सेंडर को पैकेट नहीं मिला, so there are two possible conditions. What are the possible conditions? First possible conditions is that data packet is lost, and second possible condition is that acknowledgement is lost. ठीक है, सेंडर को तो नहीं पता कि रिसीवर को, सेंडर को बस इतना पता है कि रिसीवर ने मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजा. अब सेंडर को ये नहीं पता कि डेटा पैकेट लॉस्ट हुआ या एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हुआ, और रिसीवर को ये पता है कि डेटा तो मेरे पास आया ही नहीं. सो रिसीवर नोज दैट डेटा पैकेट इज लॉस्ट, बट सेंडर डज नॉट नो वेदर डेटा इज लॉस्ट और योर एक्नॉलेजमेंट इज लॉस्ट. बट इन बोथ द केसेस व्हाट सेंडर विल डू, सेंडर विल रीट्रांसमिट दिस पैकेट अगेन. ठीक है, so this is what is written here. Timeout timer helps to solve the problem of lost data packet. After sending a data packet to receiver, sender starts the timeout timer. If the data packet gets acknowledged before the timer expires, sender stops the timeout timer. If the timer goes off before receiving the acknowledgement, sender retransmits the same data packet. After retransmission, sender resets the timer. So this prevents the occurrence of deadlock. ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ लॉस्ट डेटा पैकेट का. yes. फिर आपका है लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट. सेम, अब यहाँ पे क्या हुआ,
टाइमर सेंडर ने पैकेट 0 भेज दिया, टाइम आउट टाइमर आपका स्टार्ट हुआ, अब आपका एक्नॉलेजमेंट 1, सी यहाँ पे नोटिस करो आप, पैकेट 0 है, एक्नॉलेजमेंट 1 है, सो एक्नॉलेजमेंट 1 हो गया लॉस्ट। सो टाइम आउट टाइमर आपका एक्सपायर हो गया यहाँ पे, प्लीज स्लो योर वॉइस स्पीड। अच्छा ठीक है, टाइम आउट टाइमर यहाँ पे एक्सपायर हो गया। नाउ व्हाट विल हैपन इज दैट पैकेट 0 अगेन ट्रांसमिट हुआ, बिकॉज यहाँ पे उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, ठीक है, सिंस एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला उसे, so what will happen is कि ये दोबारा से पैकेट भेजेगा, it will think that either my packet has lost or my acknowledgement is lost, somewhere something has happened and I am not getting the acknowledgement, so it will retransmit the packet again, और फिर उसे एक्नॉलेजमेंट अगर मिल जाएगा सो इट विल सेंड द नेक्स्ट पैकेट, अगर नहीं मिलेगा सो इट विल अगेन रीट्रांसमिट द सेम पैकेट। सो व्हाट विल हैपन इज, अब यहाँ पे सी व्हाट इज द केस हियर, रिसीवर को पैकेट 0 यहाँ पे मिल चुका था, राइट, बट उसने एक्नॉलेजमेंट भेजा एंड वो लॉस्ट हो गया, सो सेंडर ने दोबारा से पैकेट भेजा, बट रिसीवर के पास ये वाला पैकेट दैट इज पैकेट 0 ऑलरेडी प्रेजेंट है। सो व्हाट विल हैपन इज कि रिसीवर के लिए ये वाला पैकेट जो है ये डुप्लीकेट हो जाएगा इसका, सो इट विल डिस्कार्ड दिस डुप्लीकेट पैकेट एंड इट विल रीसेंड द एक्नॉलेजमेंट। ये पॉइंट क्लियर हुआ? what will happen is कि पैकेट 0 आपके सेंडर ने तो सेंड कर दिया, ठीक है, रिसीवर को रिसीव भी हो गया, बट एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गए यहाँ पे, सो सेंडर को लगा कि पैकेट रिसीवर तक पहुंचा ही नहीं, सो व्हाट विल हैपन इज दैट सेंडर विल सेंड द पैकेट अगेन, when the sender will send the packet again, so receiver will again receive it, so receiver will come to know ki okay, the sender has sent me the packet, same packet again, this means that my acknowledgement was lost somewhere, so it will send the acknowledgement again and it will discard this duplicate packet because it has already kept a packet 0 with itself, so it does not require duplicate packet, so वो इसे discard कर देगा but एक acknowledgement sender को send कर देगा। So this is the problem of lost acknowledgement. So अगर इसको आप डिटेल में यहाँ पे इसकी समरी लिखी है कि sequence numbers on data packets help to solve the problem of delayed acknowledgement. So consider the acknowledgement sent by receiver gets lost. जो acknowledgement receiver ने send की वो lost हो गई. So sender retransmits the same data packet after its timer goes off. This prevents the occurrence of deadlock. The sequence number on data packet helps the receiver to identify the duplicate data packet. So receiver discards the duplicate packet and resends the same acknowledgement. वही जो मैंने आपको समझाया है, वही थ्योरी है, ठीक है। फिर आपकी आई प्रॉब्लम नंबर 3। अभी फर्स्ट प्रॉब्लम क्या थी कि आपका डेटा पैकेट लॉस्ट हो गया, सेकंड प्रॉब्लम क्या थी कि आपका एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गया, अब थर्ड प्रॉब्लम आई कि आपका एक्नॉलेजमेंट जो है वो डिले हो गया है, मतलब लॉस्ट नहीं हुआ है, उसको थोड़ा डिले हो गया है आने में। सो नाउ दिस इज द फिगर, ट्राई टू सी दिस। क्या हो रहा है, एट टाइम सपोज टी नॉट पे सेंडर ने अपना एक पैकेट सेंड किया दैट इज पैकेट 0, ठीक है, जैसे ही रिसीवर को पैकेट रिसीव हुआ पैकेट 0, रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट 1 भेज दिया, बट क्या हुआ यहाँ पे, दिस पैकेट इज नॉट लॉस्ट, एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट नहीं है, एक्नॉलेजमेंट डिले हो गया, बट तब तक व्हाट हैपेंड इज आपका टाइम आउट टाइमर जो है वो एक्सपायर हो गया। सो व्हाट यू विल डू, यू विल सेंड द पैकेट 0 अगेन, ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है क्या हो रहा है? व्हाट इज द केस इज, सपोज यू दिस इज द सेंडर एंड दिस इज द रिसीवर, सो दीज आर द टाइमलाइंस ऑफ सेंडर एंड रिसीवर। नाउ व्हाट हैपेंड एट T0, सेंडर ने एक फ्रेम या एक पैकेट भेजा रिसीवर को, ठीक है, P0। नाउ व्हाट विल हैपन इज रिसीवर ने जैसे ही रिसीव किया, व्हाट इट विल डू, इट विल सेंड एन एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट 1, व्हाई, बिकॉज P0 आया है। सो नाउ दिस इज द टाइम आउट, ये आपका टाइम आउट टाइमर का पीरियड है, दिस इज द पीरियड ऑफ टाइम आउट टाइमर। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपका टाइम आउट टाइमर जो है वो एक्सपायर हो गया। सो नाउ अब इस पॉइंट ऑफ टाइम तक क्या हुआ, सेंडर को एक्नॉलेजमेंट नहीं रिसीव हुआ, सो व्हाट इट विल डू, इट विल सेंड दी P0 अगेन, राइट। लेकिन व्हाट हैपेंड इज दैट जैसे ही P0 इसने स्टार्ट किया सेंड करना, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दैट इज समवेयर एट सम पॉइंट एक्नॉलेजमेंट 1 जो है वो इसने रिसीव कर लिया, ठीक है। सो जैसे ही इसने एक्नॉलेजमेंट 1 रिसीव किया, व्हाट इट विल डू, इट विल स्टार्ट सेंडिंग द P1,
ठीक है, अब यहाँ पे इसे ये मिला, so it will again send the acknowledgement, it will again send the acknowledgement for 1 कि I have received. Now what will happen is कि एक acknowledgement ये मिल गया है, एक acknowledgement ये मिल गया, so this is what, this is a duplicate acknowledgement. So what it will do, it will discard this acknowledgement. ये चीज क्लियर हुई आपको? फिर ये पैकेट 1 ट्रांसमिट हुआ और पैकेट 1 का एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे आ गया। ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को? क्या पॉइंट है ये एक्नॉलेजमेंट, डिलेड एक्नॉलेजमेंट का? मैम प्लीज रिपीट। सी सपोज ये आप सेंडर है, ठीक है, एंड यहाँ पे रिसीवर है। What happened is that ये आपके these are the time out timers, ये आपके time out timers हैं, ये कंडीशन मतलब टाइम आउट टाइमर्स लगा रखे हैं, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन इज दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज t0, सेंडर हैज सेंट अ पैकेट, सेंडर ने एक फ्रेम भेजा या पैकेट भेजा दैट इज हैविंग द सीक्वेंस नंबर 0, ठीक है। नाउ अप टिल हियर सेंडर वेट करेगा एक्नॉलेजमेंट का, ठीक है। रिसीवर हैज सेंट द एक्नॉलेजमेंट, receiver sent the acknowledgement, but somehow this acknowledgement got delayed and it was not able to reach the sender up till this time. So what will happen now? Time is passing slowly, time is passing here. So what will happen as soon as जो timer आपका expire होगा, यहाँ पे your timeout timer will expire. So as soon as your timeout timer expires, what will happen is sender will send the packet 0 again. Right? यही तो अभी तक पढ़ा है हमने कि जैसे ही timeout timer will expire, sender will send the same packet again. But now what happened कि जो आपका ये पैकेट था, पैकेट 0 का जो acknowledgement था, it is received by the sender at this point of time. At this point of time, this acknowledgement was received by the sender. As soon as the sender will receive this acknowledgement, from that particular time only, it will send the packet 1. Clear हुआ? ये चीज क्लियर, इतनी चीज क्लियर हुई? मैम ठीक है। Now what will happen? अब ये packet 0 is received by receiver again. So what it will do? It will think कि okay acknowledgement मतलब नहीं मिला. So what it will do? It will again send the acknowledgement of 1. That is, I have received. Now please send me the next packet. But what will happen? कि अब ये वाला acknowledgement भी sender को मिल चुका है and this is the another acknowledgement of the same packet. So what will we do? It will be a duplicate of this. So it will discard this acknowledgement. So your sender will discard this acknowledgement. Meanwhile receiver end पे क्या होगा? पैकेट 1 सेंड हो गया, so receiver जो है इस वाले पैकेट का acknowledgement भेज देगा। यहाँ पे भी रिसीवर एंड पे भी ये वाला पैकेट रिसीव हो गया, ये वाला पैकेट रिसीव हो गया, बट दिस इज व्हाट, दिस इज अ डुप्लीकेट वन, सो इट विल आल्सो बी डिस्कार्डेड बाय द रिसीवर। अब क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। ठीक है, so this is the case of delayed acknowledgement. अगर acknowledgement delay हो गया, so what you have to do? So this is what you will do when your acknowledgement is delayed. Then we have the problem of damaged packet. Damaged packet means that your packet is corrupted, that it is having an error. और error के लिए कैसे चेक करेगा रिसीवर? error के लिए we have the error control. Error controls हमने पढ़े थे previous classes में. So receiver के पास वो error controls होते हैं, so receiver will apply those error controls and will come to know that whether the packet is error free or contains the error. So if this you see here, यहाँ पे sender ने send किया packet 0. अब packet 0 आपका रास्ते में somehow कोई एक bit जो है वो change हो गई और packet हो गया corrupted. So जैसे ही receiver ने यहाँ पे packet receive किया, it will apply the error controls. It will apply error control. This is the major difference between noisy channel and noiseless channels. Noisy channels में आपका flow and error control दोनों होते हैं.
ठीक है. सो जैसे ही रिसीवर ने एरर कंट्रोल अप्लाई किया, इट विल कम टू नो दैट द डेटा इज करप्टेड. सो व्हाट इट विल डू, इट विल सेंड NAK. It will send NAK. NAK basically means the negative acknowledgement. So this is what, if receiver receives a corrupted data packet from the sender, it sends a negative acknowledgement NAK to the sender. So NAK requests the sender to send the data packet again. ये चीज क्लियर हो गई? Yes, ma'am. But what is the role of negative acknowledgement? नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट बेसिकली रिसीवर को ये बताएगा कि आपने जो मुझे पैकेट, सेंडर को बताएगा कि आपने जो डेटा भेजा था मुझे, वो एरर, उसमें एरर है. सो आप उसे दोबारा सेंड करो मुझे. मुझे वो पैकेट मिल गया है बट इट कंटेन्स एरर, इट इज करप्टेड, सो प्लीज डू सेंड मी द पैकेट अगेन. सो वो दोबारा आपको पैकेट भेज देगा. ठीक है. ठीक है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now the difference between stop and wait protocol and stop and wait ARQ. So क्या difference है? Stop and wait protocol assumes that the communication channel is perfect and noise free. Stop and wait ARQ assumes that communication channel is imperfect and noisy. फिर stop and wait में data packet sent by the sender can never get corrupt, but stop and wait ARQ में data packet may get corrupt. फिर stop and wait में there is no concept of negative acknowledgements, but in ARQ the negative acknowledgement is sent by the receiver if the data packet is found to be corrupt. In stop and wait there is no concept of timeout timer, but in stop and wait ARQ sender starts the timeout timer after sending the data packet. फिर stop and wait में there is no concept of sequence numbers, but in stop and wait ARQ data packets and acknowledgements are numbered using sequence numbers. So basically ये difference है stop and wait और stop and wait ARQ का. ये clear हो गया? stop and wait ARQ का basic difference, basic working समझ में आ गया आप लोगों को? Yes, ma'am. ठीक है. अब let's talk about the formulas. सबसे पहले efficiency. So what is efficiency? Efficiency is basically कि वो प्रोटोकॉल कितना efficient है, कितने efficiently वो डेटा को सेंड कर रहा है from one place to the other. ठीक है. अब efficiency का basic formula है transmission delay upon transmission delay plus 2 times your propagation delay. ठीक है. This is what is efficiency. कैसे? अगर आप देखो यहाँ पे, if you see here, just let me tell you. See, ये आपने ये this is the sender and this is the receiver. So now what happened is that sender is sending, अगर हम packet 1 की बात, if we are talking about packet 0 suppose, that is the first packet जो send हुआ. ठीक है. So ये 0 time था, time was 0. Now first what will happen is sender will load the packet on the channel. यहाँ पे that is your TT, that is transmission time. Transmission time is basically the time taken to load the channel, load the packet on the channel. ठीक है. So what will happen that अब इस time के बाद, that is after this TT time transmission time, the packet will be sent to the receiver. ठीक है. So receiver the packet is received by the receiver. This is your packet 0. Now what will happen? Now again as soon as यहाँ पे आपका पैकेट 0 हुआ, so what will happen this time? अब आपका जो पैकेट है यहाँ पे उसने, इसको लगा कितना टाइम, यहाँ पे अब इसने प्रोसेसिंग स्टार्ट की. First it will check for the TQ, that is queuing time, queuing delay, कि कोई क्यू तो नहीं है, पैकेट ऑलरेडी कोई क्यू तो नहीं है यहाँ पे, so it will check for the queuing time. ये आपका क्यूइंग टाइम हुआ सपोज. ठीक है. फिर आपका यहाँ पे सपोज इतना टाइम उसको प्रोसेसिंग में लगा. दिस इज द प्रोसेसिंग टाइम. ठीक है. फिर what will happen is now there is processing भी हो गई, queuing भी हो गई. अब what it will do, it will again have a certain time, that is the TT, but this TT is for your acknowledgement. क्यों? अब उसे acknowledgement भेजना है to the sender. ठीक है. So now what will happen is it will send the acknowledgement. This is the acknowledgement 1. यहाँ पे what will happen?
अब यहाँ पे this is where this packet is received. Now this is, if you see here, the entire time जो लगा, this is what, this is your propagation time and this is your propagation time. Yes or no? Yes, ma'am. Propagation time basically क्या होता है? Propagation time होता है time it takes to propagate from one place to another. So अगर मैं इसी timeline की बात करूँ, so if you see here, यहाँ पे जो आपका, अगर इतना आपका प्रोपगेशन टाइम को कैलकुलेट करना है, सो बेसिकली ये डिफरेंस जो है आपका प्रोपगेशन टाइम का हो जाएगा, और यहाँ से कितना टाइम लगा उसे सेंड होने में, सो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर उसने सेंड कर दिया अपना, सो दिस इज द टाइम टेकन फॉर द प्रोपगेशन. यहाँ पे भी ये वाली जो इमेज मैंने लाइन एकदम सीधी से बना दी है, बट इट इज बेसिकली अ लिटिल टिल्टेड वन. वाई? बिकॉज हो सकता है अगर मैं T0 पे मैं सेंड कर रही हूँ अपना डेटा, सो इट मे बी केस दैट T3 पे वो रिसीव हो. ठीक है, बिकॉज नॉइजी आपका कम्युनिकेशन चैनल है, सो इट विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन, इट विल बी अ बिट टिल्टेड लाइन. मतलब कि नॉट एग्जैक्टली T0 पे भेजे तो T0 पे रिसीव हो जाएगा, T0 पे भेजे तो T3 पे रिसीव हो रहा है. सो दिस इज अगेन इज योर TP, दैट इज प्रोपगेशन टाइम. ये चीज क्लियर हुई? इतना क्लियर हुआ आपको ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. सो बेसिकली जो अगर आप ये कैलकुलेट करो कि एक पैकेट के लिए कितना टाइम लग रहा है, टोटल टाइम फॉर वन पैकेट कितना टाइम हुआ? बताओ क्या क्या लग रहा है आपको, कितना टाइम लग रहा है एक पैकेट के हिसाब से? पहला तो एक आपको लगा ट्रांसमिशन टाइम. दिस इज ट्रांसमिशन टाइम फॉर योर डेटा, राइट? ट्रांसमिशन टाइम फॉर डेटा. देन वी हैव टू propagation times, that is 2 times your propagation delay. Then we have transmission time for your acknowledgement. Then we have the queuing time, and then we have the processing one. ठीक है. अब ये जो 3 times हैं, these 3 times, that is acknowledgement का transmission time, TQ का transmission time, that is queuing time and processing time. These are very negligible as compared to the others. मतलब बहुत ही null time होता है, बहुत ही छोटा. because आपने नोटिस किया होगा जब भी आप देखते हो, सो सेंडर ऐसे भेजता है एंड रिसीवर उसी पॉइंट ऑफ टाइम से स्टार्ट कर देता है भेजना, राइट? सो ये जो 3 टाइम है ये बहुत ही छोटे हैं एज कंपेयर टू द रेस्ट. सो एक पैकेट का टाइम कितना हो गया? एक पैकेट का टाइम हुआ डेटा, दैट इज द ट्रांसमिशन टाइम फॉर डेटा, प्लस 2 times द प्रोपगेशन टाइम. ये चीज क्लियर हुई? Yes, ma'am. एवरीवन? ठीक है. वैसे मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता सकती हूँ, बट स्टिल आई थिंक कि आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूला आया कैसे है. ठीक है. सो ये आपका हो गया कि आपका एक पैकेट को सेंड करने में, एक सिर्फ आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वन पैकेट, कि वन पैकेट को सेंड करने में कितना टाइम लग रहा है. ठीक है. अब आप ये बताओ कि जो आपका यूजफुल टाइम है, मतलब यूजफुल टाइम मींस कि आपका जो टोटल टाइम तो ये हो गया TT plus 2 TP, बट जो यूजफुल वाला टाइम है वो सिर्फ ट्रांसमिशन टाइम है, बिकॉज प्रोपगेशन टाइम तो कोई कनेक्शन ही नहीं है प्रोपगेशन टाइम से, वो तो अपने टाइम से प्रोपगेट हो रहा है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ था, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रोपगेट हुआ, फिर इस पॉइंट ऑफ टाइम से यहाँ से चला एंड इस टाइम पे यहाँ आया. सो द एफिशिएंसी इज बेसिकली ट्रांसमिशन डिले जो पैकेट का है, दैट इज ट्रांसमिशन डिले ऑफ डेटा upon transmission delay of data plus 2 times your propagation delay, that is useful time upon total time. This is what is basically efficiency. So efficiency का मतलब transmission delay for packet हमने लिया TT, that is TT upon TT plus 2 TP. Now what they have done here is they have, ये आपका दे था that this is upon, यहाँ पे इन्होंने TT को डिवाइड कर दिया है, that is what they have done, they have divided this denominator by TT, that is taking this down. ठीक है. So now यहाँ पे ये चीज हो गई आपकी 1 upon ये TT upon TT हो गया 1 plus 2 TP upon TT. ये वाला स्टेप क्लियर हुआ या दोबारा रिपीट करूं? ये वाला स्टेप क्लियर हुआ? ठीक है. अब यहाँ पे what they have done, they have denoted this TP upon TT by a symbol that is A. So now the formula becomes for efficiency 1 upon 1 plus 2A. So efficiency का formula आपको ये ध्यान रखना है that efficiency is equal to
1/1 plus 2a and a is TP upon TT. ये चीज क्लियर हो गई? Yes, ma'am. ठीक है. देन द नेक्स्ट फॉर्मूला, यहाँ पे अब ये बेसिकली आपका फॉर्मूला यहाँ पे जो है एफिशिएंसी की आगे बात हो रही है कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमने क्या निकाला, एफिशिएंसी दैट, इसको आप डिनोट करते हो इस सिंबल से, दैट इज अ बिट आई थिंक स्लैंटेड एंड, इसको कुछ और ही बोलते हैं, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं इसे. ठीक है. सो 1/1 plus 2 TP upon TT, ये है ना आपका फॉर्मूला. सो यहाँ पे प्रोपगेशन डिले एंड अपॉन ट्रांसमिशन डिले. प्रोपगेशन डिले का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, याद है? Distance upon propagation speed. हाँ, ठीक है. एंड डिले ट्रांसमिशन टाइम का क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने, Message size upon bandwidth. मैसेज साइज अपॉन बैंडविड्थ. बट यहाँ पे उन्होंने उल्टा लिखा है. क्यों लिखा है? बिकॉज ये अपना अपॉन में है. नाउ दे हैव कन्वर्टेड दिस इनटू मल्टीप्लिकेशन. सो बेसिकली क्या था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड अपॉन पैकेट लेंथ अपॉन बैंडविड्थ, ये आपका फॉर्मूला बनेगा अगर मैं इस वाले की बात करूं, इस वाले टर्म. फिर व्हाट दे हैव डन, दे हैव टेकन दिस अपवर्ड्स एंड दे हैव चेंज्ड दिस फ्रॉम डिवीजन टू मल्टीप्लिकेशन. सो ये बन गया डेटा अपॉन स्पीड इनटू बैंडविड्थ अपॉन योर पैकेट लेंथ. ये चीज, ये वाला स्टेप क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ठीक है. सो अब अगर आपसे फॉर्मूला ये पूछा जाए कि एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है, कितनी, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैकेट लेंथ. कैसे? बिकॉज अगर आप ये नोटिस करो, सो ये आपका जो बनना है, दिस इज 1/1 plus 2, ये जो आपकी स्पीड है और ये जो पैकेट लेंथ है, ये डिनोमिनेटर में है. सो आई कैन टेक दीज टू टर्म्स अपवर्ड्स. ठीक है. सो यहाँ पे ये ऊपर चले जाएंगे. सो दिस विल मीन्स दैट एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ. मतलब अगर आपकी डिस्टेंस ज्यादा है तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी, अगर बैंडविड्थ ज्यादा है तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी. बट एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड एंड पैकेट लेंथ. तो अगर स्पीड ज्यादा है तो एफिशिएंसी भी ज्यादा है, पैकेट लेंथ ज्यादा है तो एफिशिएंसी भी ज्यादा है. ये क्लियर हो गया? Yes, ma'am. कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो. ठीक है. सो हम ये बेसिकली वाला क्लियर कर दो, efficiency is directly proportional to bandwidth distance. यहाँ पे वो क्या बोला है इन्होंने, ये आपका फॉर्मूला जो जनरेट हुआ. सो इस फॉर्मूले में अगर आपको ये मतलब पता हो कि अगर मेरे पास है 4/5/2, ठीक है. सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन टेक दिस 2 अपवर्ड्स. सो ये क्या हो जाता है 4 into 2/5, राइट. और ये आपका अगर एफिशिएंसी में मान के चलूं, सो अगर मैं इस फॉर्मूले को डिकोड करूं, इफ आई हैव टू डिकोड दिस, सो व्हाट कैन आई से, that this is directly proportional to 4 into 2 and this is inversely proportional to 1/5 या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/5. या तो आप इसको ये बोल सकते हो कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 5, या तो ये बोल दो कि n जो आपकी एफिशिएंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन कैसा होता है, आई थिंक ऐसे ही लिखते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 5 या एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/5. बात एक ही पड़ेगी. ठीक है. या तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल दो या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो यहाँ पे दे आर सेइंग एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/डिस्टेंस. तो मैंने क्या बोला, एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. तो एक ही बात है वो. मतलब कि यहाँ पे दिस, अगर आपकी ये चीज, अगर आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है, सो दिस टर्म दैट इज इनवर्सली, ये वाली टर्म जो होती है दिस एंड 1 डिवाइड, ये बेसिकली मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का. सो इनका जो रिलेशन होता है वो उल्टा होता है कि अगर एक चीज बढ़ेगी सो ये वाली चीज कम होगी, ये वाली चीज कम होगी सो ये वाली चीज बढ़ेगी. बट अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, मतलब कि अगर ये बढ़ रही है तो ये भी बढ़ रही है. सो दिस इज व्हाट, इफ दिस इज इंक्रीजिंग दिस विल डिक्रीज, इफ दिस इज इंक्रीजिंग this will also decrease, but if this is increasing this will increase, and if this is increasing this will also increase. ये चीज समझ में आ गया? ओके. ठीक है. सो ये हो गया आपकी एफिशिएंसी. अब नेक्स्ट जो आपका टर्म आया दैट इज अ थ्रूपुट. ये थ्रूपुट क्या है? सो थ्रूपुट इज बेसिकली कि एक सेकंड में number of bits that can be sent through the channel per second
is called as throughput. Throughput का फॉर्मूला है efficiency into bandwidth. ठीक है, ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे because questions आएंगे इससे. So number of bits that can be sent through the channel per second is called throughput. Throughput is efficiency into bandwidth. फिर आपका next आया round trip time. So round trip time का फॉर्मूला होता है basically 2 into propagation delay. But round trip time होता क्या है? So अगर आप ये वाली इमेज देखो, यहाँ पे सेंडर ने सेंड किया, अपना स्टार्ट किया सेंड करना. सो दिस इज वन प्रोपगेशन टाइम. यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिसीव हुआ है सपोज. ठीक है, सो सेंडर हैज सेंड स्टार्ट सेंडिंग फ्रॉम हियर एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये रिसीव हुआ. फिर रिसीवर ने इस पॉइंट ऑफ टाइम से स्टार्ट किया सेंड करना. सो दिस इज बेसिकली एक पैकेट का पूरा राउंड ट्रिप टाइम. दैट इज द लेंथ और द टाइम इट टेक्स फॉर डेटा पैकेट टू बी सेंट टू अ डेस्टिनेशन प्लस द टाइम इट टेक्स फॉर एक्नॉलेजमेंट. मतलब कि ये आपका जो पैकेट ट्रैवल हुआ और ये आपका एक्नॉलेजमेंट का टाइम. सो RTT दैट इज राउंड ट्रिप टाइम इज बेसिकली द propagation time plus propagation time. First propagation time is for कि आपका डेटा कितने टाइम में सेंड हुआ एंड सेकंड propagation time is for कि एक्नॉलेजमेंट कितने टाइम में वापस से रिसीव हुआ. सो RTT is 2 times the propagation time. ये क्लियर हो गया? ये टर्म्स क्लियर हो गए सारे? Yes, ma'am. ठीक है. सो अब आपकी ये है प्रॉब्लम जो आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं इन योर एग्जाम्स या आपके एग्जाम्स में ही आएंगे बेसिकली. हाँ, सो नाउ दे आर आस्किंग यू कि बैंडविड्थ है 1.5 Mbps. ठीक है, बैंडविड्थ इज 1.5 Mbps. राउंड ट्रिप टाइम इज 45 मिलीसेकंड एंड पैकेट साइज है 1 KB. सो फाइंड द. अच्छा, लिंक यूटिलाइजेशन पूछा है. इससे पहले मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दूं. या कहाँ पे बताऊं? ये बता देती हूँ. ओके, सो ये आपका जो टर्म है एफिशिएंसी. एफिशिएंसी को हम और भी बहुत नाम से, देयर आर अदर नेम्स आल्सो फॉर एफिशिएंसी. व्हाट आर दोस अदर नेम्स? फर्स्ट इज लिंक यूटिलाइजेशन. ठीक है, सेकंड इज योर लाइन यूटिलाइजेशन. देन इट इज सेंडर यूटिलाइजेशन. मतलब यूटिलाइजेशन अगर कहीं भी आ जाए तो समझ जाना कि दे आर टॉकिंग अबाउट एफिशिएंसी. And we have utilization of sender. So these are the other names for efficiency. Okay, then next for throughput also we have certain other names also. So throughput के केस में अगर वो बात करें, throughput के terms में भी bandwidth utilization ही आएगा. So throughput के other names हैं आपके. पहला है bandwidth utilization. Effective bandwidth, मतलब अगर bandwidth के terms में बात हो रही है, so they are talking about the throughput. Then maximum data rate possible. And maximum, वैसे तो इसमें क्लियर ही है, achievable throughput. ठीक है, सो ये आपके मैक्सिमम अचीवेबल थ्रूपुट तो आपको पता है, थ्रूपुट मेंशन्ड है इसमें. सो दीज आर 3 नेम्स फॉर योर थ्रूपुट एज वेल. ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आप. सो नाउ द क्वेश्चन इज कि बैंडविड्थ है आपकी 1.5 Mbps की, राउंड ट्रिप टाइम है 45 मिलीसेकंड का और पैकेट साइज है 1 KB. सो लिंक यूटिलाइजेशन. लिंक यूटिलाइजेशन मींस क्या पूछ रहे हैं वो आपसे? Efficiency, ma'am. एफिशिएंसी, करेक्ट. सो नाउ यू हैव टू टेल कि एफिशिएंसी कितनी होगी. सो करो, करके देखो एंड टेल मी क्या आंसर आ रहा है. फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले तो आपको पता ही होगा. टीपी टीटी का फॉर्मूला तो पता ही है. एफिशिएंसी होता है 1/1 + 2 टीपी बाय टीटी. मैं लिख देती हूँ यहाँ पे.
हो गया? ट्रांसमिशन टाइम कैलकुलेट किया आप लोगों ने? ट्रांसमिशन टाइम क्या आ रहा है आप लोगों का? यस, कोई बोलेगा कुछ? गायब हो गए सब। कीर्ति, पूनम, सेनरीटा। ठीक है, फिर आप लोग खुद ही कर लेना एक क्वेश्चन, ठीक है? आई एम जस्ट एंडिंग द सेशन हियर ओनली। तो आप लोग बोलते क्यों नहीं? 3 बार से पूछ रही हूँ मैं, नो बडी इज इवन रिप्लाइंग। जरूरी नहीं है रिप्लाई करना, तो आप खुद ही कर लो फिर अपने आप क्वेश्चन सारे। एटलीस्ट रिप्लाई तो करो, इतना टाइम तो आपको वहां एग्जाम में नहीं लगाएगा लगेगा ना सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन। नो बडी इज इवन बॉदर्ड टू रिप्लाई कि मैम अगर पूछ रही है कि ट्रांसमिशन टाइम क्या है, मैं सिर्फ आपसे आंसर मैंने पूछा आपसे, मैं पूछू ट्रांसमिशन टाइम क्या है आप लोगों का। फाइन आंसर ट्रांसमिशन टाइम तो नहीं होगा, वो तो कैलकुलेट कर भी लिया होगा अब तक आप लोगों ने।
एफिशिएंसी आपकी फाइनल आएगी 10.5%। अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करनी है एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी आएगी आपकी 10.5%। ये आंसर आया किसी का? नाइन 9.44 आपका जो आंसर आ रहा है, दैट इज बेसिकली 1/1 + 2 × 4.22। सो आपकी ये वाली वैल्यू जो है ये आ रही है 9 पॉइंट। हाँ, तो इसको कैलकुलेट करोगे आप लोग 1/9.44 को, सो आपका 0.105 आएगा। efficiency is 1/1 + 2 Tp/2t, that is 1/1 + 2a. ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर है आपका 10.5%। अब आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले लो बाकी क्वेश्चंस के, एंड उसको करके लाना। आपको इसके स्क्रीनशॉट्स ले लो। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट एवरीवन? Yes, ma'am. Done. इसका भी ले लो। ठीक है, सो दीज 2 क्वेश्चंस आप ट्राई करके लाना। अब जब नेक्स्ट क्लास होगी, सो उसमें हम आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। दैट इज योर जो आपका है स्लाइडिंग प्रोटोकॉल और गो बैक एन वाला, और बाकी सारे प्रोटोकॉल जो भी आपके फ्लो कंट्रोल में है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन यही तो है। सेकंड क्वेश्चन इससे पहले वाला। ओके, वेट। ये है सेकंड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये है और एक वो जो प्रॉब्लम 3 थी वो है। ठीक है एवरीवन? Yes, ma'am. So I'll keep it till here only, and okay. So रिवाइज कर लेना आप लोग। अगर असाइनमेंट का क्वेश्चंस रेडी हो जाएंगे, so जहां तक आई गिव द असाइनमेंट फ्रॉम द फिजिकल लेयर क्वेश्चंस, so वहीं से आपके क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगी मैं। so आज या कल मैं आपको मिल जाऊंगी। क्वेश्चन क्वेश्चन है आपके पास, अगर स्लाइड है फिजिकल लेयर वाली पीडीएफ, मैम एक मिनट, फिजिकल लेयर की तो बहुत सारी पीडीएफ्स हैं। कौन सी वाली पीडीएफ की बात कर रहे हो आप? कौन से टॉपिक की कौन सी बात कर रहे हो? मैम एक फॉर्मूला था जो हमने इवैल्यूएट किया था log 2n वाला, मुझे याद नहीं आ रहा वो किसमें था, मैंने पढ़ा था जिसमें हमने एक फॉर्मूला इवैल्यूएट किया था। आपने बताया था कि शायद वो बैंडविड्थ का था या किस चीज का था। जस्ट वेट अ मिनट मैम, गिव मी अ 2 सेकंड मैम। ये यस मैम, यस मैम।
हाँ बिट रेट मैम ये कैसे इवैल्यूएट हुआ था ये लॉग बेस टू ये बेसिकली एक थ्योरम है, नाइक्विस्ट करके थ्योरम है आपकी, उसी में ये आपका फॉर्मूला है। इसको इवैल्यूएट का नहीं, मतलब इवैल्यूएशन का नहीं है कुछ, बट बेसिकली ये नाइक्विस्ट थ्योरम थी एक। नाइक्विस्ट वाज अ पर्सन जिन्होंने ये थ्योरम सजेस्ट की थी नॉइसेस चैनल के लिए। सो इन्होंने ये एक थ्योरम सजेस्ट की थी, जिसमें इन्होंने फॉर्मूला मेंशन किया था कि आपको अगर बिट रेट कैलकुलेट करनी है विद द हेल्प ऑफ बैंडविड्थ एंड सिग्नल लेवल्स, सो आप कैसे करोगे। सो ये उन्होंने फॉर्मूला डिफाइन किया था खुद से। बट अगर आपको इसका वो चाहिए कि आपने किसे ड्राइव किया ये, तो मैं आपको उसका जो भी कोई किसी उसमें ही होगा ये बेसिकली किसी पेपर में, तो मैं आपको लिंक ढूंढ के फॉरवर्ड कर दूंगी। ठीक है, ठीक है श्योर एनीथिंग एल्स? नो मैम ठीक है एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर।